Right. Assalamu alaikum, students. How are you? Hope you are doing well. Okay. So this is the recorded lecture of a new chapter. The class that I have not taken it, and so please, I have recorded the lecture for you. So kindly listen it carefully. If you have any questions, so you can post it on the GCR comment section, as well as you can ask on the class as well. Right. So let me start the uh, topic of today is so today we'll discuss about the logic gates and logic circuits. Now, why we use the logic gates and logic circuits? Logic gates are very important. Now, why it is very important? क्योंकि सबसे important चीज़ ये होती है electronics. When we discuss about computers, so we talk about electronics. Okay, and when we talk about electronics, so we always talk about circuits. And which type of circuits we talk about? We talk about digital circuits. Okay, now when we say digital circuits, so when we say digital circuits, it is very important to know these circuits, जितने भी circuits हैं, digital circuits हैं, they are made for on through the logic gates. जितने भी सर्किट्स मेड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं या उनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो लॉजिक गेट्स के ऊपर ही रहते हुए किया जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू नो द लॉजिक्स बिहाइंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो आप उसको बिल्ड भी कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पेपर वन में जो है ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ यू कैन गेन easy marks. Okay, very easy marks in terms of your CEI paper. Now let me start you with the topic. uh, okay class, again I'm just opening uh, the paint, Microsoft Paint, right? So just let me tell you one thing. Okay class, let me start it once again. The topic is, today's topic is about logic gate. Now when we talk about the logic gate होते क्या हैं? They are the basically used as circuits. Okay, they are the part of a circuits. They are basically we can make the circuit diagrams, digital circuit diagrams through the logic gates. So they are the part of electronic circuits. Okay, मीन्स ये बात ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं वो बनते ही लॉजिक गेट्स के ऊपर ही हैं. ठीक है, अगर आप इफ़ यू वांट टू मेक द लॉजिक, अगर आप गेट्स, अगर लॉजिक गेट्स बनाना चाहें या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाना चाहें, विदाउट द गेट्स आप उसको नहीं बना सकते. So as you can see that in your book it says that basically electronic circuits in computer, जितने भी computers के अंदर circuits हैं, whatever you have for RAM, ROM, any chipsets that you have on motherboard, so all those are basically made from through electronic circuits. Now electronic circuits, as I told you, are made through logic gates. The key part जो इसका सबसे important part है वो क्या है? ये बेस करते हैं बाइनरी डेसिमल्स, बाइनरी सिस्टम्स के ऊपर. दे आर बेस्ड ऑन बाइनरी सिस्टम्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनरी सिस्टम्स का मतलब क्या हुआ? राइट, सो बाइनरी सिस्टम्स का मतलब है दे आर बेस्ड ऑन 0 and 1. ठीक है, ये 0 और 1 के ऊपर बेस करते हैं. Now, what do you mean by 0 and 1? 0 means a low signal and 1 means the high signal. Okay, let's suppose अगर मुझे एक डिजिटल, और हमें सबको पता है, आप सबको पता होगा कि लो सिग्नल्स और हाई सिग्नल्स की ही कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजिटल सर्किट्स जो है वो काम करते हैं.
सो जितने भी हमारे पास ये देखें, ये अगर हमारे पास एक हाई सिग्नल है और ये लो सिग्नल है, और फिर ये हाई सिग्नल और ये लो सिग्नल है, ये हाई सिग्नल्स आ गए. नाउ व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट दीज सिग्नल्स, तो एवरी टाइम ये जो है हाई सिग्नल जो है वो 1 से रिप्रेजेंट होगा और लो सिग्नल जो है वो 0 से रिप्रेजेंट होगा. सो इट मीन्स दैट कि जितने भी गेट्स होंगे, लॉजिक गेट्स होंगे, वो भी 1 और 0 पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई एनालॉग कम्युनिकेशन नहीं है. सो जितने भी लॉजिक गेट्स हैं, वो जितने भी सिग्नल्स की जो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करेंगे, जिस सिग्नल्स पर काम करेंगे, वो डिजिटल सिग्नल्स है, नॉट फ्रीक्वेंसी. सेकेंडली, they worked on binary systems. Binary systems में क्यों काम करते हैं? Because bi means two and nary means number. So binary means two numbers. So when we discuss about, I have already discussed this thing in the previous chapter of high level languages and low level languages, that कि अब हमारे पास जो systems हैं वो binary system पे काम कर रहे हैं जनरली, ये जो हमारे machine language से कहते हैं, right? अब when we discuss कि हमारे पास अब कौन कौन से गेट्स हैं, ओके. अब इन बाइनरी सिस्टम्स को हम लोग एक तरीके से एक ऑपरेशन कहते हैं, ये मैथमेटिकल की फॉर्म में एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, बूलियन अलजेब्रा. बूलियन, ओके, बूलियन अलजेब्रा के नाम से भी कहते हैं, ये बूलियन फॉर्म्स ऑफ के नाम से, तो बूलियन अलजेब्रा. सो अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ पेपर में, या आपको कोई क्वेश्चन कभी करे कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, बेसिकली बूलियन अलजेब्रा इज basically is a mathematical form which deals in the binary systems. Okay. अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली, अच्छा जैसे मैं आपको बताया कि ये सारे क्या है, एक डिजिटल सिग्नल्स है, ठीक है. तो डिजिटल सिग्नल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रीट सिग्नल्स. ओके, ये डिस्क्रीट सिग्नल्स भी इनको आप कह सकते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि डिस्क्रीट का मतलब क्या है, कि तो उसको रिलेट कर सकते हैं इजीली. यू कैन रिलेट टू द डिजिटल सिग्नल्स, एंड डिजिटल सिग्नल्स रिलेट कर सकते हैं आपको बाइनरी से. Now, discrete means step by step. Okay, this is basically anything which is step by step is called a discrete thing. So when we say about a discrete signal, so it means that a step by step signals. Now when we say step by step signals, so it means that one step is high, okay, the other one is low. One step is high, the other one is low. So जिस तरह से सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी के अंदर जो है वो दो स्टेप्स होते हैं, एक हाई स्टेप होता है, एक लो स्टेप होता है, फिर उसके बाद एक लो होता है, फिर उससे एक लो होता है. सो उसके अंदर जो है वो एक कंटिन्यूएशन, एक हाई लो का ही सिस्टम है. सेम एज इट इज यहाँ पर भी ऐसे सिस्टम है कि सिग्नल या तो हाई होगा या लो होगा, इन बिटवीन कुछ नहीं है. जबकि एनालॉग सिग्नल किस तरह से होता है, एनालॉग सिग्नल कुछ इस तरह से ट्रेवल करता है, इसे कहते हैं कंटिन्यूस फॉर्म, ठीक है. इसके अगेंस्ट में क्या फॉर्म होती है, डिस्क्रीट फॉर्म. यानी कि दो तरह के सिग्नल्स है, एक है हमारे पास डिजिटल सिग्नल, द अदर वन इज कॉल्ड द एनालॉग सिग्नल. द डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या कहलाते हैं, डिस्क्रीट, विच इज कॉल्ड इन स्टेप बाय स्टेप. बट व्हेन वी से अबाउट द एनालॉग, एनालॉग मींस दैट दे आर कॉल्ड अ कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस सिग्नल. ओके, कंटिन्यूस सिग्नल का मतलब कि दे हैव डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है, एंड इट चेंजेस एट एवरी टाइम. ओके, सो इट इज अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ चेंजिंग, it is in the continuous state of changing, so that's why we say as a continuous signal. Okay, uh, so coming back onto the digital electronics के ऊपर हम आ जाते हैं. Now digital electronics में हमारे पास कौन कौन से लॉजिक गेट्स है. लॉजिक गेट्स कौन कौन से हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट अ नॉट गेट. ओके, इट्स अ नॉट गेट.
So when we talk about a NOT gate, let me just write it, the things, the names of the each and every gate. NOT gate है, इसके बाद AND है, OR है, NAND है, NOR है, and exclusively OR है. Okay, now secondly we have got AND gate. Okay, and AND gate is just like that. It's like a D and straight line, and two inputs are there. I will explain each and everything, okay, later in the class. This is an introductory class of this chapter, so don't worry about that. Just keep it in mind that you have to just know the names right now at this point of the lecture. Right, the third one is called OR. Okay, so it's a curve, and then similarly this is the symbol of OR, and the fourth one is exclusively OR. Okay, the fifth one is NOR. Okay, now I'm starting with the first three, which is the most basic one. सबसे basic होते हैं. This NOT means is called inverse. Okay, this is called inverse. This is called inverse. Inverse, what do you mean by inverse? Inverse means if you enter 1, so what is the value? It will generate 0. So when you input 0, it will give you value 1. This is called inverse gate. Okay, now, so there is one input. If I enter 1 here, so it will give me 0 over here. Similarly, if I give 0 in the start as an input, it will give me 1 as an output. So this is inverse. This is NOT gate. Okay, it's just like in mathematics we called it as a complement. Complement होता है जैसे 1 को अगर हम इन्वर्स कर दें तो उसको जो है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. वो मैथमेटिक्स में अगर आप एड मैथ्स या मैथ्स जनरल मैथ्स की बात करते हैं, so we call it as a complement. Okay, one's complement जिसे कहते हैं. Secondly, which is called an AND gate. AND gate means it's a multiplication. Okay, it's a multiplication. The mathematical form is called a multiplication. Multiplication, or you can say as a multiply. So जब आप multiply की बात करते हैं, इसके जो है क्या कहते हैं, अगर आप यहाँ पर 1 इनपुट करेंगे, यहाँ पे 0 इनपुट करेंगे, सो यहाँ पर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0. तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, इट विल से गिव यू 0. ओके, सो इफ यू फिर हम लेटर ऑन इसके बाद बताएंगे कि किस कंडीशन में ये बता रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ समरी ऑफ दैट टॉपिक कि अभी सिर्फ आपको जस्ट you have to remember that NOT means inverse, AND means multiply. The third thing is called the OR. OR means addition. That is called the addition form. Okay, this is very important. Okay, all the things are equally important, but these three gates basically are the basics of all the other gates. जितने भी लॉजिक गेट्स हैं वो सारे इन्हीं में से जनरेट होते हैं या रीजनरेट किए जाते हैं. So 1 plus 0 is always be a 1. Okay, so keeping in mind that कि ये जो है कर्व है, ठीक है, ये एक रेड कलर का एक कर्व आ रहा है यहाँ पर, और फिर ये आगे जाके ये जस्ट, जबकि जो एंड में है, एंड जो है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और ये डी है, ये बिल्कुल डी की तरह है. So keeping in mind कि ये do not mix the diagrams in between. Okay, right, so this is important. Okay, the three things you have to remember, that what is NOT, what is AND, and what is OR.
नॉट का फंक्शन क्या है, इनवर्स, एंड का फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई, एंड और का फंक्शन क्या है, एडिशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस थिंग. Now, coming back onto the topic, so we'll discuss the other gates in the coming classes. Okay, the next topic is truth table. Now, what is a truth table? Okay, that's very important. अच्छा देखें, truth table में क्या होता है कि जब भी हम whenever we want to make any circuit diagram, we have to make possible outcomes. Okay, so possible outcomes की base के ऊपर we have to make certain possible solutions as well. So what value we have to input, and अगर हम कोई वैल्यू, ये वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा, ये वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट आएगा. सो जनरली इन वैल्यूज के ऊपर रहते हुए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल. ठीक है, so we always create a truth table of every logic gate. Okay, so let me just save it first for you. Logic gate 1. Okay. And I'm going to open a new lecture. Okay, now what is truth table? So truth table basically एक possible outcome हो सकते हैं. अच्छा, मैं अब आपके सामने कोई डायग्राम्स पहले बना दूं कि एक आपके पास ये नॉट गेट है. ठीक है, ये एंड गेट है, और ये और गेट है. ओके, नाउ दिस साइड is called as input. Okay, this is operation side. Okay, and this side basically is called, the last one is an output. Okay, so how, अब ये बात याद रखिएगा कि हर इनपुट के, एवरी इनपुट हैज टू पॉसिबल, यानी हर इनपुट के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ये इनपुट है तो इसकी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. या तो आप इसमें 1 एंटर करेंगे या 0 एंटर करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल हो सकता है. तो अगर आप 1 एंटर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0. अगर आप 1 एंटर करेंगे, 0 एंटर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1. सो डू नॉट मिक्स दिस थिंग. अगर आपके पास ये एक इनपुट है तो आपके पास एक ही आप इनपुट कर सकते हैं. अगर आप जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं. ओके, सेम यहाँ पर OPR लिख रहा हूं मैं. OPR का मतलब ऑपरेशनल एरिया, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज देन आउटपुट. ओके, so we call it as an X. Okay, output is always be an X. तो ये यहाँ पर आ गया. ठीक हो गई बात. ये दो इनपुट हो गए. इसी तरह से यहाँ पर भी दो इनपुट्स हैं, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. Okay, this is also called the OPR area, and this is called as an output area. यहाँ तक तो बात क्लियर होनी चाहिए सबको. सिंपल सी ये डायग्राम हो गई है हमारे पास. अब नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास यहाँ कितनी है? नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास
नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पर? 2 ना। अब 2 इनपुट्स हैं तो हम उनको नाम दे देते हैं, ठीक है। एक इनपुट है तो हम उसको एक ही नाम दे देते हैं। क्या नाम दें? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नाम दे दिया ए का, ठीक है। आउटपुट को नाम दे दिया एक्स का, सबके आउटपुट एक्स है क्योंकि ए की आउटपुट है। इसी तरीके से 2 इनपुट्स हैं यहाँ पर, तो हमने एक को ए दे दिया, दूसरे को बी दे दिया। अब थर्ड हमारे पास जो है इस सेम एज इट इज, ये भी हमारे पास ए है और दूसरा जो इनपुट जो है वो बी हो गया। ओके, सो मैंने आपसे एक बात की थी कि एक इनपुट के 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, तो 2 के कितने होंगे? 4। ओके, 4 के कितने होंगे? 16, यानी कि ये 2 का मल्टीपल, यानी कि ये आपकी पावर चलती है इसमें। ओके, ना व्हेन वी टॉक अबाउट 1, तो अब हम इसके एक टेबल बनाते हैं। दिस इज ए एंड दिस इज एक्स। यहाँ पर क्योंकि एक इनपुट है और एक आउटपुट है और एक ऑपरेशन एरिया होगा, दैट मींस ऑपरेशन होके जो रिजल्ट आएगा वो लिखना है हमने। यहाँ पे ऑपरेशन एरिया नहीं करना हमने। तो अब हमने क्या करना है, जब ए की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 1 हो सकती है या 0। ए की वैल्यू या 1 हो सकती है या 0। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट क्या आएगा? 0। और अगर 0 होगी तो क्या आएगा? 1। दिस इज कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल। दिस इज कॉल्ड अ, ये ट्रुथ टेबल बन गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? गुड, राइट। अब यहां से आगे हम फर्दर ऑन बढ़ते हैं। वी हैव गॉट 2 इनपुट्स, सो वी हैव टू मेक 2 कॉलम्स। दिस इज ए, दिस इज बी। Okay, we have 2 inputs and 1 output, so we have make another column of it x. But सवाल अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अब नंबर ऑफ रोज कैसे पता चलेंगी, हाउ मेनी रोज वी हैव टू मेक इट, कि अब किस तरह से लिखना है। असल चीज अब जो ट्रुथ टेबल की है, द मेन थिंग विच आई रियली वांट टू टीच यू, वो अब यहाँ पर आ रही है। देयर इज अ फॉर्मूला 2 की पावर input, okay, to find out the total number of rows। टोटल रोज मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपके पास, दैट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग 2 की पावर इनपुट। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2 की पावर इनपुट क्या है? यहाँ पर कितनी इनपुट्स हैं? 2 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 2 एंड दिस इज कॉल्ड 4। सो 2 की पावर 2 equals to 4, so we have to make 1 2 3 एंड 4। ये 4 हमारे पास 4 रोज आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात? 1 2 3 एंड 4। नाउ हाउ यू हैव टू राइट द वैल्यूज, दिस इज द सेकंड ट्रिकीस्ट पार्ट। द फर्स्ट ट्रिकीस्ट पार्ट क्या था? ट्रिकी पार्ट क्या था कि हाउ मेनी रोज, अब कितनी किस तरह से वैल्यूज लिखनी है वो। अब राइट साइड से देखें, यानी कि जिस पेज पे मैं कर रहा हूँ राइट साइड से देखें, तो हमारे पास पहला वेरिएबल कौन सा है, पहला इनपुट कौन सा है? विच इज बी। सो इट्स बी, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बी। नाउ अब बी से स्टार्ट करेंगे। अब पहली वैल्यू, या आप जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है हमने नोट पे लिखा, हम वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। तो वी हैव टू स्टार्ट विद 1, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली वैल्यूज को चेंज करना है, सेम कॉलम बट डिफरेंट रॉस। यानी कि हमने पहली वैल्यू अगर 1 लिख दी तो दूसरे रॉ के अंदर हमने 0 लिखना है। फिर अगेन तीसरे कॉलम में अगर फिर 1 आ जाएगा, फिर लास्ट कॉलम में 0 आ जाएगा। सो ऑल्टरनेटिवली द वैल्यू विल बी चेंज फ्रॉम 1 to 0 एंड 0 to 1। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। नाउ
जो सेकंड वाला है, जो ए है, अब इसकी वैल्यूज क्या है, ये भी चेंज होंगी मगर आफ्टर टू इंटरवल्स, मींस the first two value will remain same 1 1, then again it will change into 0, फिर दो जीरोस आ जाएंगे, दैट्स इट। तो पहले दो क्या है, 1 1, और पहले उसके बाद 0 0। इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखें, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि जब पहला कॉलम होगा तो उसमें 1 का ऑल्टरनेटिव चलेगा, यानी कि 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। फिर अगर जब हमारे पास दूसरा कॉलम होगा, सेकंड कॉलम होगा, तो उसमें 2 का अल्टरनेटिव चलेगा, यानी कि 2 वंस फिर 2 0 फिर 2 वंस फिर 2 0। अगर हमारे पास 4, हमारे पास यानी कि थर्ड अगर वो कॉलम हो, अगर लेट्स से वो यहाँ पर सी भी होता, ए बी सी होता, तो फिर हमारे पास क्या होता, 4 वंस फिर 4 जीरोस। अब ये सिस्टम याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा, इफ यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग, 1 2 4 8 16। सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस थिंग? आंसर क्या आएगा इसका? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 multiplied by 1 0, 0 multiplied by 0 0। So this is multiplication, that's why we have to multiply, ये simple सी बात है। The third is called the same, हम यही टेबल बनाएंगे, बिल्कुल जैसे ऊपर बनाया वैसे ही टेबल बनाएंगे और उसको हम एडिशन कर देंगे इसमें। ओके, दिस इज ए, ओके, दिस इज बी एंड दिस इज एक्स। ओके, एंड बिकॉज दो वेरिएबल्स है तो हमें सिर्फ दो ही कॉलम्स, चार रोज बनाने होंगे, 1 2 3 एंड 4। सो अगेन वी हैव टू राइट द सेम थिंग, जब हमारे पास सेम वैल्यूज है, 1 0 1 0 1 1 0 0। ओके, सो अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। लेट मी जस्ट करेक्ट इट, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग किया। ओके, जीरो था, ओके, 1 plus 1 is 1, 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 is always 0। अच्छा, क्वेश्चन ये हो सकता है आपकी तरफ से कि भाई सर 1 plus 1 तो 2 होता है। यस, यू आर राइट, मगर जब हम बूलियन की बात करते हैं, बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं और लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज गेट द आंसर्स इन 1। ओके, वी ऑलवेज गेट द आंसर इन 1, ठीक है, 1 में ही आंसर आता है। मैं वो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा टॉपिक है जिसमें एडर सब्ट्रैक्टर्स भी आप ऐड करते हैं, वो एक डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ स्टडीज है। बट सिंस वी हैव ऑलरेडी only in the class 10th, so for 10th के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 1 plus 1 is always a 1, it can't be a 0, ठीक है। So we have to take the positive value, so this is the reason। So this is all about today's lecture, and if you have any queries, if you have any questions, do ask me on the YouTube comments में भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द क्लास एज वेल, और जब हमारी ऑनलाइन क्लास हो तब भी आप पूछ सकते हैं। सो इसको दोबारा से अगर कोई क्यूरीज हो तो उसको दोबारा से लेक्चर को देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपकी बेस बनेगी एंड देन उससे आगे फिर हम फर्दर क्योंकि जब एक्टिविटीज करेंगे तो उसकी थोड़ी सी एडवांस एप्लीकेशन के ऊपर हम काम करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।